Hello everyone, welcome to PrepIS. Myself Karuna Mishra, and today I will be continuing the prelims based crash course series, and the subject that I am doing is science and technology. So science and technology mein we have already covered the major portions, and today I will be discussing certain miscellaneous topics that I think are important for the prelims of 2023. Now today's class is a mix of some old topics, some new topics, something that has been in news or any area which I think can come in your examination. इसके अलावा I will also mention certain topics that already have come in the news but in the examination in the prelims paper, but you can give it a read just before going to the prelims, so that you have that satisfaction that majority of the topics are done. Otherwise, whatever we have done so far is more or less sufficient for your prelims, and the revision will help you in your examination. So now without further ado, let us discuss certain miscellaneous topics that are from the science and technology area that are important for your prelims. Now, the first topic that I am going to study is the lumpy skin disease. The lumpy skin disease, which created a lot of chaos among the cattle breeders, जिसमें बहुत ज़्यादा जो गौवंश था, the cattle, the cow, the water buffaloes, they were dying on the roads, on the streets. बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये एक वायरल डिजीज़ थी. और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड था, even up till 14 days post infection the cattle is a carrier of the disease. और क्योंकि इतना लंबे समय तक the virus remains in the body of the cattle, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जिसकी वजह से आपकी इतना ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है वो उसकी चपेट में आ गया था. सो इसमें इनिशियली यू हैड एक्सट्रीमली हाई फीवर्स अप टू द ट्यून ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस. यू हैड सोलन लिम्फ ग्लैंड्स, हेंस लम्पी. आपके जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो इतने सोलन हो जाते थे कि इट यूज टू अपीयर लाइक लम्प्स, और वो जो लम्प्स की तरह अपीयरेंस होता था, इसलिए इसको नाम दिया गया लम्पी डिजीज़. तो इसमें होता क्या है, एनिमल्स मे डेवलप लार्ज फर्म नोड्यूल्स of up to 5 centimeters in diameter in the skin, and this is what was creating the lump like structure. Then other the depression, the anorexia, rhinitis, conjunctivitis, excess salivation, these were all the effects of the lumpy disease in the cattle. And one which was more significant was the decrease in the overall milk production. The morbidity was extremely high, between 5 and 45%. So the morbidity was also very high. The disease that this particular virus infection was causing included depression, anorexia. What is anorexia? When you do not have the desire to eat. When you do not have the desire to eat, already your body is under attack from the viral, and your body will not have the strength to fight the disease, and the overall milk production will also be less. So these lesions, these necrotic lesions can develop in respiratory as well as the gastrointestinal tracts. तो इसकी morbidity बहुत ज़्यादा हाई थी, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहता था cattle, and this caused a lot of chaos. So what is a lumpy disease? It is a viral illness which caused prolonged morbidity in the, what is morbidity and mortality? Morbidity यानी बीमारी, राइट, morbid state. मोर्टैलिटी यानी मृत्यु हो जाना. सो प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी इज, काफ़ी समय तक इसमें कैटल बीमार रहता है. द काउज, द वाटर बफेलोज, द बुल्स, दे सफ़र फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ कॉज्ड बाय अ पॉक्स वायरस विच इज़ लम्पी स्किन डिजीज वायरस, LSDV. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉक्स वायरस, जैसे आपका स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उसी कैटेगरी का ये वायरस होता है. इट अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स of the infected animal, causing the nodes to enlarge and appear like lumps on the skin. सबसे पहले ये जाम्बिया में पाया गया था, और जनरली अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है जहाँ पर कैटल रियरिंग इज़ वेरी वेरी एक्सटेंसिव. So this disease is very contagious. It is vector borne, and it spreads through vectors like mosquitoes, biting flies, ticks, and usually affects the host animals such as cows and buffalo. So हमको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है. Those are the facts. One, what is the name of the virus? It is LSDV virus, that is lumpy skin disease virus. It is a type of a pox virus. It affects the lymph nodes. लिम्फ नोड्स आपके एनलार्ज होकर लंप की तरह अपीयर करते हैं ऑन दी स्किन. सबसे पहले जाम्बिया में देखा गया था. इट इज़ अ वेरी कंटेजियस दैट मीन्स इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट, and it spreads through mosquitoes, some flies, ticks, etc. and it affects the host cows and water buffaloes. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस. सो द प्रिवेंशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, और प्रिवेंशन कैन बी डन बाय द वैक्सीनेशन.
सो गोट पॉक्स वैक्सीन जो है इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट दी लंपी स्किन डिजीज़ एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICER, इसकी 2 लैब्स हैं जिन्होंने मिलकर इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है लंपी स्किन डिजीज़ की। तो आइडियली इसका जनरली आपकी जो वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं उनके कोई इलाज होता नहीं है, आपका सिर्फ मैनेजमेंट होता है उसका, बट इसके लिए हमारे ICER ने एक इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है। Now coming to another topic, again this is not a current affair topic but it always remains in news for some reason or the other, that is shale gas or shale oil. So shale gas या shale oil has actually changed the geopolitics. Why? Because the biggest producers of shale oil are USA, America, your Canada and China. अमेरिका इससे पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंट था ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज़, इसलिए आपने ये कहावत सुनी होगी कि अमेरिका को कहीं पे भी तेल दिखता था तो किसी ना किसी बहाने से उस पर अटैक कर देते थे। लेकिन जब से उनके पास प्रूवन रिजर्व्स आए हैं शेल गैस के, दे देमसेल्फ हैव बिकम द नेट प्रोड्यूसर्स एंड आर नाउ एक्सपोर्टिंग द शेल ऑयल एंड शेल गैस। तो सबसे पहले है क्या शेल ऑयल और है क्या शेल गैस, और क्या ये टाइट गैस भी कहलाती है? तो टाइट गैस का क्या मतलब है? ये बेसिकली उन नॉन पोरस या नॉन परमिएबल रॉक्स में पाई जाती है। जनरली जो गैसेस होती हैं वो एस्केप कर जाती हैं थ्रू दी क्रेवाइसेस और दी पोर्स ऑफ द रॉक, बट दीज आर फाउंड इन सच नॉन पोरस और टाइटली स्टक टुगेदर रॉक्स की ये एस्केप नहीं कर पाती हैं और एक जगह ये एक बेड टाइप का या एक डिपॉजिट आपका बना लेती हैं। तो शेल ऑयल और शेल गैस की वजह से, क्योंकि ये अमेरिका में प्रूवन रिसोर्सेज आए हैं, सडनली USA इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम वेस्ट एशिया विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन दी रीजन। आप अफगानिस्तान से यू आर रिमूविंग योर फोर्सेज, फ्रॉम इराक यू आर रिमूविंग योर फोर्सेज, सो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडिया पे भी आ रहा है। दूसरा, व्हेन रशिया वॉज engaged with the war of Ukraine, the whole world put sanctions on Russia. जब पूरी दुनिया ने सैंक्शंस डाल दिए रशिया पर, इंडिया वो स्टिल परचेजिंग ऑयल बिकॉज इंडिया हैज़ टू मेक श्योर टू मेक श्योर अबाउट इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, एंड रशिया इज़ अ मेजर सप्लायर ऑफ गैस एंड एनर्जी फॉर इंडिया, बी इट पेट्रोलियम, बी इट नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो उस वक्त भी देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाई परचेज फ्रॉम रशिया, वाई नॉट परचेज फ्रॉम अदर्स। तो इंडिया ने यही बोला था दैट द शेल ऑयल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय USA इज़ वन एट अ वेरी हाई कॉस्ट and the overall transportation and everything is very tedious and is very expensive for India. So India has to look out for its interest. तो उसी से मैंने ये एक टॉपिक जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट होगा, हमेशा ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ शेल ऑयल, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल क्रूड ऑयल एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द शेल गैस एंड शेल ऑयल। सो सबसे पहले होता क्या है? इट इज़ एन अनकन्वेंशनल ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम shale rocks. Shale rocks are a variety of rocks which are found generally up to from 2500 to up to 5000 meters depth पे, and you know get this oil through pyrolysis, hydrogenation and thermal dissolution. In this process there is a conversion of organic material within the rock, that is kerogen, into synthetic oil or gas. बेसिकली शेल गैस इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। सो शेल गैस इज फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ नेचुरल गैसेस। Here the refined products can be used for the same purpose as those derived from the crude oil. So when I get shale oil, then I can use it same as the crude oil or petroleum. If I get the shale gas, then I can use it same as the natural gas. How it is different from the conventional crude oil? So the key difference between shale oil and the conventional crude is that the former is also called as the tight oil and is found in very smaller batches and deeper than the crude oil deposits. The extraction requires creation of fractures in the oil and gas rich shales to release the hydrocarbons through a process called as hydraulic fracking. अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये चीज़ समझाऊंगी एंड देन वील गेट बैक टू दिस दैट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल क्रूड ऑयल। तो ये देखिए, अगर ये मेरा स्ट्रक्चर है, अगेन आई हैव टेकन इट फ्रॉम द US जियोलॉजिकल सर्वे, तो मेरी कोल बेड मीथेन मुझे बहुत ऊपर मिल जाती है। उसके बाद मेरा ये कन्वेंशनल नॉन एसोसिएटेड गैसेज या मेरा नेचुरल गैस की ये डिपॉजिट्स हैं। दिस इज़ वॉट माई कन्वेंशनल क्रूड ऑयल इज़ फाउंड एंड दिस इज़ वेयर द कन्वेंशनल क्रूड ऑयल इज़ फाउंड। दिस इज़ वेयर द गैस रिच शेल और दी टाइट सैंड इज़ फाउंड। तो ये जो सैंडस्टोन है उसके नीचे का जो
नॉन पोरस नॉन परमिएबल रॉक है विच इज़ एक्सट्रीमली नॉन पोरस, यानी कि इट डज नॉट हैव क्रेवाइसेस, इट डज नॉट हैव क्रैक्स फॉर टू अलाउ द गैस टू एस्केप द रॉक. तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आई नीड टू drill a vertical hole and then a horizontal hole to allow this gas rich shale to release the gas and the gas is then collected. इसी तरह मुझे ऑयल भी मिलता है जिसमें आई डू दी वर्टिकल फ्रैक्चरिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी हाइड्रोलिक फ्रैकिंग. अब ये जो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग है हम इसको समझेंगे कि क्या होता है. हाइड्रोलिक फ्रैकिंग में यू डू द वर्टिकल ड्रिलिंग डाउन द अर्थ. बिफोर इसमें आप 3-4 चीज़ें करते हैं. अब इस बात को सुनिए फिर हम पॉइंट्स पर जाएंगे. तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, मैं यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग करूँगी टुवर्ड्स दिस रॉक. इसके बाद में हाई प्रेशर में आई विल thrust in water along with sand etc. क्यों? so that I can break this tight rock or this shale rock. मैं इसको क्यों ब्रेक करना चाहती हूँ? so that the gas is released and the gas can be collected. एक सिंपल सा प्रोसेस है. मैंने पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करी, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करी, उसके साथ मैंने हाई प्रेशर के साथ पानी, आपका सैंड एट्सेट्रा, इसको आई हैव पुश्ड डाउन द शेल डिपॉजिट्स और द शेल रॉक डिपॉजिट्स. व्हाई एम आई डूइंग इट? ताकि ये डिपॉजिट्स ब्रेक हो जाए. ये जो टाइट गैस है, टाइट गैस क्यों कहला रही है? गैस है तो फ्री होगी. ये रॉक्स बहुत टाइट होते हैं, इतने ज़्यादा नॉन पोरस होते हैं कि गैस एस्केप नहीं कर पाती. तो मैं इस हाइड्रोलिक फ्रैकिंग मटीरियल से हाई प्रेशर में जब पानी सैंड वगैरह भेजती हूँ तो मैं इसमें इस रॉक को ब्रेक करती हूँ ताकि गैस एस्केप कर पाए और इससे मैं गैस को कलेक्ट कर पाऊँ. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक फ्रैकिंग. हाइड्रोलिक फ्रैकिंग. सो फ्रैकिंग is the process of drilling down into the earth before a high pressure water mixture is directed at the rock to release the gas inside. Water, sand and chemicals are injected into the rock. ये वो mixture है जिसकी मैं बात कर रही हूँ. किसका बना होता है? Water, sand and chemicals into the rock at high pressure which allows the gas to flow out to the head of the well. यानी आप पहले क्या करते हैं? आपने यहाँ पर पहले एक कुआं बनाते हैं राइट अबव इट. आप यहाँ पर हाई प्रेशर में पानी के साथ आपकी हाई प्रेशर वाटर के साथ आप सैंड भेजते हैं, केमिकल्स भेजते हैं ताकि आप इस रॉक को तोड़ सकें, ताकि गैस रिलीज हो सके और इस वेल में आप उसको कलेक्ट करते हैं. इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी गैस. सो दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट वर्टिकली और मोर कॉमनली बाय ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली to the rock layer which can create new pathways to release gas or used to extend existing channels. The term fracking refers to how the rock is fractured apart by the high pressure mixture. तो आप बेसिकली फ्रैकिंग यानी आप फ्रैक्चर्स क्रिएट कर रहे हो थ्रू दिस हाई प्रेशर मिक्सचर. ये हाई प्रेशर मिक्सचर किसका है? वाटर, सैंड एंड केमिकल्स का है. आप एक वेल प्रिपेयर करते हो राइट अबव द रॉक जहाँ पर आप ये ऑयल और गैस को इकट्ठा करते हो. तो इंडिया में प्रूवन रिसोर्सेज पाए गए हैं, पर दुनिया में इट इज़ द रशिया एंड द यूएसए विच आर द लार्जेस्ट shale oil producers. Canada is also one of the major producer. China is also a major producer. With surge in the shale oil prices, production in USA, it has played a key role in turning the country from an importer of crude oil to the next exporter, net exporter in 2019. मैंने आपको क्या बताया था कि पहले यूएसए की डिपेंडेंसी थी वेस्ट एशिया पर और दूसरी ऑयल कंट्रीज़ पर फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, बट आफ्टर शेल ऑयल एक्सट्रैक्शन USA has become the net exporter rather than the importer of oil. तो अब इस डायग्राम को देखते हैं और बहुत जल्दी रिवाइज करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेल गैस एक्सट्रैक्शन. तो शेल गैस सबसे पहले शेल रॉक्स में पाई जाती है. शेल रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि नॉन पोरस, नॉन परमिएबल होते हैं. ये जनरली बहुत ही डेप्थ पे पाए जाते हैं. इनकी डेप्थ बहुत नीचे होती है, बहुत क्लोज नेट होते हैं और ये जो गैस या ऑयल होता है ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये यहाँ पर पाया जाता है. अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस तरीके से हाई प्रेशर सोल्यूशन भेज रही हूँ. हाई प्रेशर सोल्यूशन विच इज़ वाटर अलॉन्ग विथ सैंड अलॉन्ग विथ केमिकल्स. क्यों? सो दैट आई कैन क्रिएट fissures or I can break this rock so that I can then collect it in the well, the oil or the gas, and this process is called as hydraulic. Why? Because of the mixture of water, and fracturing or fracking because you are fracturing the rock and then you use it for various purposes. Again it is a form of natural gas. तो इसका main constituent क्या होगा?
CH4. Now coming to the proven resources of shale gas in India. In India, the prospective basin is actually this. बहुत थोड़ा रीजन है जो कि इंडिया में पाया जाता है. जो हमारा मेन रीजन है दैट इज कैम्बे, जहाँ पर शेल गैस एक्सट्रैक्शन है. कृष्णा गोदावरी बेसिन आपका बोलिवियन प्लेट्यू के बाद केजी बेसिन has one of the highest proven reserves of natural gas. Then you have the Damodar river basin and you have the Kaveri basin. So it is Cambay, Damodar, Krishna and Kaveri basin in India which are important. Apart from that you have Pranhirta, you have Rewa basin, you have Vindhyas and you have the Rajasthan basin. Rajasthan में it is Cain India Limited, CAIRN, Cain India Limited, which had started 2013 में the exploration. 2016 में आपकी हाइड्रोकार्बन्स की पॉलिसी चेंज हुई थी जिसमें आपने ईजी कर दिया था हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन को. स्पेशली कृष्णा गोदावरी बेसिन में जब रिलायंस ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया था, कैम्पे में भी रिलायंस ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया था, तो ये जो ईजिंग ऑफ नॉर्म था इससे जो इंडस्ट्री को काफ़ी हेल्प हुई थी. तो दिस इज़ व्हाट इज़ दी possible places where you find shale gas. So you have reserves in the Cambay, Krishna, Godavari, Kaveri, Damodar, Pranhita, Assam, Godavari, Rajasthan and the Vindhya basin. ONGC ने सबसे पहले वडोदरा के पास जाम्बूसार में कैम्बे बेसिन में शेल गैस का वेल बनाया था. पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स? करेंटली कोई भी लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन शेल गैस का नहीं हो रहा है. आपने 2013 में, जैसे मैंने आपको बताया, आपने शुरू किया था, बट आपने सिर्फ नॉमिनेशन ब्लॉक्स बनाए हैं और अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है. पर फ्यूचर में शेल गैस को एक्सप्लोर किया जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी इंडिया इज़ हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कोल और हमको एनर्जी सिक्योरिटी आपकी कहीं ना कहीं से तो मैनेज करनी पड़ेगी बिकॉज करेंटली ऑल्सो यू आर डिपेंडेंट 60% of your energy requirement on coal. So now coming to another topic which I think is important for your exam is the ramjet engines and scramjet engines. तो मैं ramjet engine और scramjet engine generally यूज़ करती हूँ एयरक्राफ्ट्स में. मैं जनरली सुनती हूँ करंट अफेयर्स में कि सो एंड सो हाइपरसोनिक व्हीकल हैज़ बीन टेस्टेड और वो जो हाइपरसोनिक व्हीकल है वो स्क्रैमजेट इंजन यूज़ कर रहा है. तो व्हाट एग्जैक्टली आर रैमजेट एंड स्क्रैमजेट इंजन? आई थिंक आई विल रादर यूज़ दिस टू गिव एन एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले एक टर्बोजेट इंजन होता है, फिर टर्बो फैन इंजन होता है, उसका एडवांस रैमजेट होता है और सबसे ज़्यादा एडवांस होता है स्क्रैमजेट. तो टर्बोजेट क्या है? सबसे पुराना और जो जनरल पर्पस जेट इंजन, जो नॉर्मल जेट इंजन होता है जिसको मैं जानती हूँ, जो जनरली मार्क 3 स्पीड तक जा सकता है, जिसमें मेरा एक नोन फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र यूज़ मैं करती हूँ. Then you have the turbofan engine which is essentially a turbojet but with large ducted fan that provides the additional thrust. तो additional thrust इससे मिल जाता है तो मेरी overall speed और ज़्यादा हो जाती है और मेरी velocities higher velocities पर I can have the maneuverability. तो ये जो बोइंग है उसमें ये यूज़ होता है. Now coming to the ramjet. Ramjet इट इज़ बेसिकली एन एयर ब्रीदिंग जेट इंजन. एयर ब्रीदिंग जेट इंजन यानी कि आपका जो फॉरवर्ड मोशन होता है इंजन का, आपका जो इंजन का फॉरवर्ड मोशन होता है, जो आपका नोजल का शेप होता है, उसमें यू कंप्रेस द इनकमिंग एयर और ये जो कंप्रेस्ड इनकमिंग एयर होती है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजर एंड देन प्रोवाइड्स द थ्रस्ट फॉर द एयरक्राफ्ट टू टेक और गेन हायर स्पीड्स. तो यानी ये एक एडवांस सिस्टम है जिसमें ऑक्सीडाइज़र मैं गैस को मैं नेचुरल एयर को यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा जो ये फॉरवर्ड मोशन है ये आने वाली इनकमिंग एयर को कंप्रेस करता है. एंड रैमजेट्स एक्चुअली कैन नॉट प्रोड्यूस एनी वेलोसिटी इनिशियली. आपको इनिशियल थ्रस्ट इसमें नहीं मिल पाता. तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बी इट रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, बी इट एनी टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल, बी इट एनी टाइप ऑफ मिसाइल, आपका जो इनिशियल थ्रस्ट होता है दैट इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय दी सॉलिड बूस्टर्स. आपका सॉलिड फ्यूल ही इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड कर पाता है, जैसे इस केस में भी होगा. तो दे आर स्टिल इन द इनिशियल थ्रस्ट. वंस द थ्रस्ट इज प्रोवाइडेड they require a propulsion system, and once it is provided then they make use of the incoming air, compress it and use it as an oxidizer for better
your fuel, the fuel is used more effectively and you can gain much more velocity, much more speed. तो ये तो मेरा रैमजेट हो गया. मेरे स्क्रैमजेट में क्या होता है? स्क्रैमजेट में भी मेरी इनकमिंग एयर फ्लो होती है, बट द स्क्रैमजेट्स आर अ कैटेगरी ऑफ इंजन्स which are designed to handle air flows at the speeds in multiple of the speed of sound. यानी ये जो incoming air है ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आ रही है and I can handle that. So it is in the air breathing scramjet engine, the air from the atmosphere is rammed into the engine's combustion chamber at the supersonic speed of more than Mach 2. तो बहुत ही हाई स्पीड में ये आपके कंबशन चेम्बर में डाली जाती है, जिससे आपका एज एन ऑक्सीडाइजर ये यूज़ होती है, और जिसकी वजह से मेरा जो फ्यूल होता है, द एयर मिक्सेस विद द फ्यूल टू इग्नाइट द सुपरसोनिक कंबशन एंड द क्रूज फ्लाइट्स रीचेस और अटेन्स द हाइपरसोनिक speed that is more than 5 Mach, that is 6 Mach, 7 Mach or even 8.5 Mach, which is achieved by the Shaurya missiles. So it is called the supersonic combustion ramjet or scramjet. This is the simple working of scramjet. So scramjet is the supersonic combustion ramjet, यानी कि ramjet but at supersonic speed, that is multiple speed of sound. It is an air breathing jet engine in which the combustion takes place in supersonic airflow. आपका जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का प्लस हाइड्रोजन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द व्हीकल. हाइड्रोजन क्या हो गया, मेरा फ्यूल हो गया, और ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो कि कंप्रेस होकर आ रही है विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजर, और इसकी वजह से द लिफ्ट ऑफ विल टेक प्लेस एंड द सैटेलाइट विल बी placed in the desired orbit. The aircraft will move at a desired speed. The missile will be placed at the desired location or target. Whatsoever, the basic jet engine technology is the same, the applications can be different. What is the advantage? It reduces 70% of the propellants that have to be carried in the vehicle. Then we have already discussed turbofan, ramjet and scramjet. This is how they appear. Now coming to the difference between cryogenic engines and the scramjet engines. Now cryogenic engines, in cryogenic engines मेरा cryogenic fuel which is liquid hydrogen at a very very reduced temperature, यानी जब बहुत lower temperature में मैं किसी fuel को use करती हूँ तो वो cryogenic fuel कहलाता है, और अगर मैं उसे किसी engine में use करती हूँ तो वो cryogenic engine कहलाता है which supports cryogenic fuel and cryogenic oxidizer. यानी यहाँ पर मेरा लिक्विड हाइड्रोजन तो होता है फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडाइज़र. आप जानते ही होंगे कि लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंबशन क्रिएट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूल होता है, और ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आते ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो हियर देयर इज़ नो एयर इनटेक दैट इज़ रिक्वायर्ड. वाई? बिकॉज द ऑक्सीडाइज़र इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन विच इज़ स्टोर्ड इन द चेम्बर. यहाँ पर एयर इनटेक इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस काइंड ऑफ इंजन. द फ्यूल नीड्स टू बी स्टोर्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. Here the fuel does not require to be at a low temperature. It runs efficiently when the low temperature fuel transforms and mixes correctly and ignites. It runs efficiently at the supersonic speed that forcefully compresses air before the combustion. India is the 6th nation apart from US, Russia, France, Japan and China to have the cryogenic technology. And here with scramjet engine, India is only the 4th after US, Russia and European Space Agency to demonstrate the flight testing using the scramjet engine. It caused the payload is independent of the oxidizer. Since oxidizer is saving the cost, it can carry more payload. यहाँ पर oxidizer का भी weight होगा, एक अपने आप में payload होगा, और क्योंकि यहाँ पर I am using the air, the incoming compressed air, the load is reduced and you can have more payload on the launch vehicle or on the my engine, jet engine. Now coming to going hypersonic, how scramjet engine technology is associated with getting the hypersonic speed. So hypersonic vehicles are first of all powered by the scramjet engines. India has successfully flight tested the indigenously developed hypersonic demonstration vehicle. Hypersonic speeds 5 Mach के ऊपर जानी जाती हैं. Hypersonic speeds आपकी दुनिया की कुछ ही देशों ने अचीव करा है, जैसे कि फ्रांस ने, जैसे कि यूएसए ने, जैसे कि चाइना ने, जैसे कि रशिया ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, एट्सेट्रा ने. तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज नाउ दी वेपन्स
द वेपन्स, अभी मैं मिसाइल लॉन्चिंग की बात कर रही हूँ, मैं आपकी सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब मेरे वेपन्स कैन ऑल्सो नाउ ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ Mach 6, that is 6 times the speed of sound, and the weapon will be integrated into a hypersonic vehicle, so the vehicle will also travel at a speed of more than 5 Mach, and the payload will also be placed at a much higher speed. तो इसमें which other countries have developed this? USA, Russia and China have developed these technologies. What will be the development or hypersonic entails are basically you will be able to place your weapons very fast. And what are the main challenges? The challenges is high temperatures, aerodynamic force make the hypersonic flights tricky, and the successful flight has proven that we have overcome these critical technological landmarks. So India has achieved the hypersonic speed because of the development of these scramjet engines. Now coming to another topic which was in news is a dirty bomb. So Russia had moved into the United Nations that Ukraine is planning to use dirty bombs against the Russia. तो why it was a problem? जबकि रशिया ने क्या यूज़ करा था? थर्मोबारिक बॉम्ब. थर्मोबारिक बॉम्ब जो कि इतना पावरफुल था that it literally vaporized the buildings, the concrete buildings. Forget about the human bodies. तो डर्टी बॉम्ब क्या है? डर्टी बॉम्ब के अगेंस्ट वो क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ हुआ है. कैसा रेडियो एक्टिव मटीरियल? अगेन रेडियो एक्टिव मटीरियल विच यू कैन फाइंड इन दी हॉस्पिटल्स, इन दी लैब्स, बहुत रिफाइंड नहीं है, बहुत क्रूड फॉर्म में है, बट आई एम यूजिंग इट विद कन्वेंशनल माई material, and then I am creating explosive. So it will spread the radioactive material in the atmosphere and will cause damage to the environment, to the humans, and due to the radiation can also cause diseases. So what is a dirty bomb? Dirty bomb is a mix of explosives such as dynamite, a radioactive powder or pellets, right? These pellets will actually spread out. आपका जो इतना ज़्यादा नुकसान किसी और चीज़ से नहीं होता जितना शेल्स से होता है. वो जो शेल्स होते हैं, जो पेलेट्स होते हैं, दे आर थ्रोन एट सच हाई स्पीड्स दैट दे कैन इवन पियर्स द बॉडी. तो बुलेट नहीं मारेगी लेकिन पेलेट्स मार देती हैं, राइट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस. सो RDD, RDX नहीं है, RDD है. RDX में यूज़ कर रही हूँ. So it cannot create an atomic blast. Atomic blast जैसा नहीं होगा, but when it explodes, it carries radioactive material such as uranium into the surrounding areas and can cause the radiation. इसमें highly refined material, radioactive material is not required. It is not required. In fact, the radioactive material from hospitals, nuclear power stations, labs, etc. can be used for making or assembling a dirty bomb. So dirty bomb क्या है? Which uses radioactive material, but it is not as very refined or enriched. जो आपका एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए आपको मोर देन 90% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम करना पड़ता है. तो वो एनरिचमेंट नहीं चाहिए जो आपके हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में जो एज अ रेसिड्यू न्यूक्लियर मटीरियल होता है, आप उससे ये बॉम्ब बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी थर्मोबारिक वेपन्स. तो थर्मोबारिक वेपन यूज़ करा था रशिया ने इन दी यूक्रेन वॉर. तो ये कैसे काम करता है? आई हैव टेकन दिस इन्फोग्राफिक फ्रॉम BBC सो दैट वी कैन हैव दिस डिस्कशन. सो थर्मोबारिक बॉम्ब में आप करते क्या हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स ही वेपराइज हो जाती हैं. हियर द बॉम्ब स्ट्राइक्स द टारगेट. मान लीजिए यहाँ पे बॉम्ब गिरा. पहला एक्सप्लोजन होगा छोटा सा, अ स्मॉल एक्सप्लोजन विच विल रिलीज अ क्लाउड ऑफ एक्सप्लोजिव मटीरियल. ये पहले एक्सप्लोजिव मटीरियल को फैला देगा. एक्सप्लोजिव मटीरियल यानी आपने पहले कैरोसिन फैला दी, ठीक है, एंड देन सेकेंड एक्सप्लोजन विल कॉज द इग्निशन. अब आपने आग लगा दी. तो यहाँ पर एक्सप्लोजिव मटीरियल पहले फैलेगा, वो स्प्रेड होगा, एंड देन द इग्निशन विल टेक प्लेस. द सेकेंड एक्सप्लोजन इग्नाइट्स दिस क्लाउड और उसकी वजह से बहुत मैसिव ब्लास्ट होता है. तो आपने पहले एक्सप्लोजन में मान लीजिए केरोसिन या पेट्रोल फैला दिया और दूसरे में आग लगा दी. आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अब इसको आप वेपन ग्रेड में इमेजिन कीजिए कि आपने जो कन्वेंशनल आपका वेपन ग्रेड मटेरियल है उसको पहले यू हैव डिस्पर्स्ड इट, एंड सेकेंड एक्सप्लोजन में वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है दैट इट बेसिकली इवेपोराइजेज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स कॉन्टैक्ट. ऑल ऑफ दीज पीपल आर डेड विच आर इन इट्स in this range. So this is what thermobaric bomb is. Why thermobaric bomb was a cause of concern? Because UN में या
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसके अगेंस्ट नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट they can take the actions. But what about the thermobaric bombs? Because it is not a nuclear bomb, it is not using nuclear material, but it is causing much higher destruction, so much destruction, and lot of life is lost. So these are also called as the weapons of mass destruction. So इसी के retaliation में probably Ukraine was making a dirty bomb. Now coming to another project or another random topic that I think is very important for your prelims is the sonification project of NASA. A very beautiful project basically to benefit the visually impaired people. Visually impaired people को कैसे करेंगे? तो आप जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, that is JWST, it is one of the most ambitious project by NASA. इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. बट व्हाट इट इज़ प्रोवाइडिंग, तो आपका ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इट इज़ ट्रांसलेटिंग द इमेजेस. सो नासा इज़ ट्रांसलेटिंग द इमेजेस एंड डेटा विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टेलीस्कोप इनटू द साउंड. तो सोनिफिकेशन क्या होता है? सोनिफिकेशन इज़ द मेथड इन विच द यूज़ ऑफ नॉन स्पीच ऑडियो टू कन्वे इंफॉर्मेशन और परसेप्चुलाइज डेटा. नासा हैज़ डन सो फॉर कॉस्मिक क्लिफ्स. आपने एक कैरीन नेबुला है जो कि आपकी सिस्टम के पास फॉर्म हो रहा था, तो इसके जो डेटा है, इसके जो पिक्चर्स हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने थ्रू द मेथड ऑफ सोनिफिकेशन यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू द साउंड. तो सिमिलर हाउ इट इज़ डन, जैसे आपके रिटन डिस्क्रिप्शंस होते हैं that are unique translations of visual representation or visual images, sonification also translates the visual images by encoding information such as color, brightness, star location, water absorption and signatures as sounds. So there will be a specific sound for a specific entity. So this is called as the sonification, which basically is meant for helping the visually impaired people to imagine or understand how the universe is working or how the different objects are there out in the universe by using the data from James Webb Space Telescope. Now coming to another important news, that is the steam propelled spacecraft, that is Aquilus. So Aquilus is the first steam propelled spacecraft. This is the first spacecraft which will head to moon and beyond. Very important. It is a water powered spacecraft, hence steam propelled. किसने बनाया है? जापान एरोस्पेस एजेंसी JAXA. किसने लॉन्च किया है? ओरायन ने. ओरायन अगेन मैंने आपको आर्टेमिस के टाइम पे भी पढ़ाया था. तो अगेन वाई एक्विलिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्टीम या वाटर बेस्ड होगा. दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है. कहाँ जाएगा? टू मून एंड बियॉन्ड. कौन सा स्पेसक्राफ्ट इसको लॉन्च करेगा? ओरायन स्पेसक्राफ्ट. किस एजेंसी ने बनाया है? JAXA, दैट इज द जापान एरोस्पेस एक्सचेंज एजेंसी, और सॉरी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. Now coming to another important news which I think can come in your prelims, that is the OVH मैग्नेटोमीटर और ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर. तो आपके जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये मैग्नेटोमीटर बनाया है जो कि बहुत एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस दे रहा है. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैम मैग्नेटोमीटर क्या होता है? सो इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट मेजर्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. तो क्योंकि इंडिया ने बनाया है तो ये एग्जाम्पली इंपॉर्टेंट है. तो आपका डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टडी करता है, उसका डेटा एक्यूरेट डेटा आपका बनाता है. इट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसेस द जियोमैग्नेटिक डायअर्नल वेरिएशंस and precisely showed the signatures of various space weather events such as geomagnetic storms etc. तो ये जैसे मेरी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसको मैं स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट डेटा. ये क्या है? मैग्नेटोमीटर. किसने बनाया है? इंडियन साइंटिस्ट ने. एंड द डेटा विल बी यूज्ड बाय ऑल द मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज अराउंड द वर्ल्ड. Now another important topic for your exam is non-fungible tokens. हमने जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, नॉन फंजिबल टोकन इज़ एन एग्जाम्पल और इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो आपने बेसिकली क्या करा है? आपने ये डिजिटल एसेट्स बनाए. दीज डिजिटल एसेट्स कैन बी art, painting, a piece of music, some sort of lyrics, even a tweet. Jack Dorsey's tweet, is one of the highest
NFT which has got the valuation. तो it can be anything which has a uniqueness to it, और उसको मैं किसके ऊपर बेस कर रही हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो व्हाट इज एन NFT? NFT इज अ डिजिटल एसेट whose ownership is verified through transaction records stored on the blockchain. Very important point. OpenSea ये न्यूज़ में है एक्चुअली. तो OpenSea न्यूज़ में है तो मुझे बेस टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए. तो व्हाट इज OpenSea? OpenSea is said to be the largest NFT marketplaces in the world and it was built on the Ethereum blockchain to trade the NFTs. तो OpenSea एक NFT का बहुत मेजर मार्केट प्लेस है. आपने देखा होगा कि आपकी मंकी आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा मनी फेच कर रहा है इन दी NFT. इसी तरह ट्वीट फेच कर रहा है NFT. Even Amitabh Bachchan has applied for various NFTs, non-fungible tokens, on the way he speaks, on his speeches, on his even the recitation of Madhushala, etc. Now, this is a small representation for us to quickly revise what is an NFT. So, while every Bitcoin is identical, an NFT or non-fungible token are unique. Okay, they cannot be you cannot just have a similarity when it comes to NFTs. They are unique. Then NFTs, like the plane tickets, they all look the same but have a different seat and destination, so they have a unique character to it. They are ideal for creating digital versions of collectibles such as art and trading cards. Other cases that use the digitization are in real estate. Ethereum के ऊपर ये based है and these tokens can be bought or sold using the second hand marketplace. तो क्वेश्चन आता है मैम, अगर NFTs भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं तो उनमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है? तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ करेंसी एंड इट इज़ हाईली फंजिबल. व्हाट इज़ फंजिबल? कैन बी डिवाइडेड. यानी अगर मैंने लेट अस से 1 बिटकॉइन खरीदा है तो उस एक बिटकॉइन के मैं 0.01% ऑफ द बिटकॉइन आई कैन सेल एंड परचेज. राइट, सो इट इज़ फंजिबल मीनिंग इट इज़ इंटरचेंजेबल एंड इट कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो. मैं बिटकॉइन के बदले इथीरियम खरीद सकती हूँ, इथीरियम के बदले मैं कोई और क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकती हूँ. सो इफ़ यू होल्ड ऑन टू वन क्रिप्टो टोकन से इथीरियम, द नेक्स्ट इथीरियम दैट यू होल्ड ऑन विल ऑल्सो हैव द सेम वैल्यू. जबकि सिमिलर आर्टवर्क की सेम वैल्यू नहीं होगी, हर आर्टवर्क की वैल्यू अलग होती है. बट NFTs आर नॉन फंजिबल, दैट इज the value of one NFT is not equal to another. Every art is different from the other, making it non-fungible as well as unique. So this is the difference. In cryptocurrency, they are similar, exchangeable, they are fungible, whereas NFTs are non-fungible, यानी कि हर NFT की अपनी वैल्यू है और इंटरचेंजेबल नहीं है और इसको मैं डिवाइड भी नहीं कर सकती. Another topic that was in news was crypto jacking. ऑलवेज रिमेंबर इट विद हाईजैकिंग. तो क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? ये वो साइबर अटैक होता है जिसमें एक कंप्यूटर को टेक ओवर कर दिया जाता है ताकि वो क्रिप्टो इलीगली माइन करे क्रिप्टो करेंसी. तो अगर कोई एक ग्रुप बैन हो गया है फ्रॉम माइनिंग क्रिप्टो करेंसी और होल्डिंग ऑन टू क्रिप्टो करेंसी, दे विल हाईजैक और दे विल बेसिकली अटैक certain computers and will use them for illegal mining of the cryptocurrency. So cryptojacking, it is a cyber attack wherein computer device is hijacked and controlled by the attacker and its resources are used to illicitly mine the cryptocurrency. तो इसमें ये मेरा एंड यूज़र है, ये मेरा थ्रेट एक्टर है, ये कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट क्रिप्टो माइनिंग स्क्रिप्ट एम्बेड हो गई है, ये इसने यूज़ करी है, अब ये हैक हो गया है और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में कर रही हूँ. तो द थ्रेट एक्टर कॉम्प्रोमाइजेज अ वेबसाइट, यूजर्स कनेक्ट टू द कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट एंड crypto mining script executes. The users unknowingly starts mining the cryptocurrency on the behalf of the threat actor. Upon successful adding of a new block to the blockchain, the actor receives the reward in the form of cryptocurrency coins. तो यानी यहाँ पर एनोनिमिटी भी इसने मेंटेन कर ली और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी कर ली एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिप्टो जैकिंग. रिमेंबर इट विद हाईजैकिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी. Another technology, or you can say the misuse of technology that was in news, was deepfakes. This is the original picture and this is the created or fake picture. यानी इस इंसान की डेटा को यूज़ करके आपने यहाँ पर टॉम क्रूज की पिक्चर बना दी. दैट इज़ डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस विच आर एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड using artificial intelligence
to inflict harm on individual or the institution. जैसे you can use deepfakes to manipulate the speech of global leaders, national leaders, and also create riots and chaos. तो आपका deepfakes again क्या use कर रहा है? Artificial intelligence. Then you have another very very important topic, that is Bharat OS और भार OS. भार OS, it is an Android open source project जो कि JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अलॉन्ग विद IIT मद्रास बना रहा है. तो बेसिकली आप जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उसको दूर करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन इंडिया, दैट इज़ भार OS. It is free from Google service and apps. It comes with no default app और NDA. कोई भी डिफ़ॉल्ट, आप अगर कोई भी फ़ोन ख़रीदते हैं उसमें ऑलरेडी कुछ ऐप्स होती हैं जो इंस्टॉल्ड आती हैं जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो चोरी होने का खतरा होता है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द परमिशंस. दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट हैव एनी डिफ़ॉल्ट apps, so allowing the users to have more control over the permissions that an app can have. Bharat OS does not come with any pre-installed services or apps, hence is deemed to be more secure. इसके अलावा it comes with the native over-the-air update, NOTA, native over-the-air update feature to keep the devices safe, and private app store services यानी PaaS, यानी ये private app stores हैं which given to the device which gives them the access to only those apps which have been thoroughly verified by the organization. यानी प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस है, थॉरली अगर मेरी ऐप उसमें नहीं स्क्रूटनाइज करी है तो इट विल नॉट बी अलाउड टू बी डाउनलोडेड थ्रू दी डिवाइसेस. सो दिस इज़ माई भारत OS और भार OS, वेरी इंपॉर्टेंट. JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड और IIT मद्रास ने बनाया है. इट इज़ एन इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ द डेटा थेफ्ट, of the privacy of the consumers and especially Indian smartphone users. Now coming to another important topic that was in news is gelbots. तो gelbots 3D printed product हैं. ये basically gelatin के बने हुए थे. Gelatin is an organic product. So gelbot is significant advancement in soft robotics. Soft robotics which are soft at touch, which can be used for different your hospital industry, in your household industry, etc. And they are fashioned out of organic and non-material metallic material और non-toxic material. Gelatin का बना हुआ है, gelatin जो कि organic या animal के through बनती है. So what it is a 3D printed product. It moves without requiring any extra power. It feels like fruit gum rather than hard metallic surface on the robots. तो मेरा जो robot का जो surface होगा, जो feel होगा, that will be much better because it feels like a fruit gum rather than the hard metallic surface. Extremely promising material for soft robotics. Rely on principles that gels that swell or shrink in response to temperature can be used to create smart structures, very important. And it is cheap and easy to mass produce. Gelatin can be easily produced. Gelatin is used ऑल्सो इन बेकिंग इंडस्ट्री. तो आपका वो जो जेलेटिन से आप बेकिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? इसके एप्लीकेशन होंगे टू डिलीवर टारगेटेड मेडिसिन, टू यूज़ देम एज मरीन रोबोट्स, पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ओशन सर्फिस, मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी फॉर बायोमेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो पहली चीज़ ऑर्गेनिक है, नॉन मेटालिक है, तो यानी मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है. मेडिकल इंडस्ट्री में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड मेडिसिन डिलीवरी के लिए यूज़ हो सकता है. मरीन रोबोटिक्स में यूज़ हो सकता है एंड बायोमेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ हो सकता है. नाउ कमिंग टू अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फ्यूल सेल और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल नितिन गडकरी साहब जो कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बिकम द ग्रीन हाइड्रोजन हब. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल and how I can use it for powering my mass transportation system, even my cars, etc. तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जर्मनी ने लॉन्च करी है दुनिया की पहली fleet of fully hydrogen powered trains which will only use the hydrogen fuel cells. Hydrogen fuel cell vehicles are expected to grow by 60% over the next 5 years in India. तो ये क्या है? Fuel cells are like batteries, they work like batteries, but they do not. So this is the change. They do not run down or need the recharging.
So they keep producing electricity and heat as long as the fuel is supplied. जब तक फ्यूल सप्लाइड है तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी. इट कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड एंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और दी कैथोड, और इसके बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट. जनरली ये आपका प्लैटिनम का बना हुआ होता है इलेक्ट्रोलाइट. इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. तो इसमें आप एक चीज़ अच्छे से समझिए कि ये मेरा हाइड्रोजन अंदर गया, ये मेरा एनोड है, ये मेरी मेम्ब्रेन है जो कि प्लैटिनम की बनी हुई है. अब ये जो एनोड है इसको, इस मेम्ब्रेन को ऐसा परमिएबल बनाया जाता है, पोरस बनाया जाता है कि ये जो प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन को अलाउ करती है टू मूव टूवर्ड्स दिस साइड. अगेन आई विल से कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको इस तरह सेलेक्टिवली परमिएबल बनाया जाता है कि इट अलाउज दी प्रोटॉन्स टू मूव, प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन टू मूव टूवर्ड्स दी कैथोड. तो जब ये जो बड़ा आपको डॉट दिख रहा है, दिस इज द प्रोटॉन. व्हेन इट मूव्स टूवर्ड्स दी कैथोड साइड, तो आपका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटॉन की मूवमेंट को इनेबल कर रही है, और ये जो अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट एंड्स अप क्रिएटिंग. अब ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ से भेजा जा रहा है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे. सो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल? ओनली वाटर. अगेन आपका फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन. आपका ऑक्सीडाइजर क्या है? ऑक्सीजन. आपने एक तरफ से हाइड्रोजन को पाइप इन करा, उस हाइड्रोजन को मैंने एनोड पे डाला, एनोड से हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन वाला पार्ट है इट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन. अब बचता है इलेक्ट्रॉन विच स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द कैथोड क्रिएटिंग एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो ऑक्सीजन का जो एटम्स हैं और जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रॉम द अबव, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, विच इज़ द ओनली रेसिड्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल सेल. So, the Union Budget for 2021-22 has announced the National Hydrogen Energy Mission that will draw the roadmap for using hydrogen as an energy source. तो hydrogen as an energy source बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. So, what are the different types of hydrogen based on the process of its formation? बहुत 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 important है आपके prelims के लिए. So, you have the green hydrogen which is produced by electrolysis of water using renewable energy, जैसे कि आपकी सोलर, विंड, विच हैज़ वेरी वेरी लो कार्बन फुटप्रिंट. यानी आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कैसे बन रही है? आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग करे, और इस हाइड्रोजन को अब मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ फ्यूल इन माई हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और ऑक्सीडाइज़र वहाँ पर मैं वाटर को यूज़ कर रही हूँ. इसमें जो मैं एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो एनर्जी यूज़ कर रही हूँ दैट आई एम यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, which has very very low carbon footprint. So the electricity will split the water into hydrogen and oxygen, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? अगेन वाटर एंड वाटर वेपर. फिर आती है ब्राउन हाइड्रोजन. ब्राउन हाइड्रोजन बेसिकली व्हेन द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कोल. तो अगर कोल बेस्ड हाइड्रोजन बन रही है, जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वो कोल के थ्रू हो रही है, तो इसमें एमिशंस तो रिलीज होंगे बिकॉज द बेस material for generating heat for electrolysis is coal. Then you have grey hydrogen which is produced by using natural gas. Again the emissions are released into the air, hence it is also not entirely environment friendly. And you have the blue hydrogen which is important, which is again very important for your examination. तो सबसे ज़्यादा इनमें जो detrimental to the exam environment है that is brown hydrogen, followed by grey hydrogen, followed by blue hydrogen, and the most environment friendly is green hydrogen. Blue hydrogen में आप natural gas से तो बना रहे हैं हाइड्रोजन, but the emissions are captured using the carbon capture and storage. कार्बन सिक्विस्ट्रेशन अगर आपको याद हो तो आप कार्बन को कैप्चर करते थे और माइंस में, अंडरग्राउंड सी बेड्स एट्सेट्रा में इस कार्बन को स्टोर करते थे. तो आपका जो एमिशन है, यू आर नॉट अलाउइंग द एमिशन टू एंटर द एयर और द एटमॉस्फेयर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन द process of formation of the hydrogen. So next you have the zero emission solution.
सो वाई ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट ज़ीरो एमिशन सोल्यूशन, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्रेंडली है. देर इज़ नो टेल पाइप एमिशन. टेल पाइप एमिशन क्या होता है? जो आपके व्हीकल्स के पीछे जो पाइप, एग्जॉस्ट पाइप होता है, उसको टेल पाइप एमिशन बोलते हैं. तो इफ़ माई ऑटोमोबाइल्स और माई व्हीकल्स become hydrogen fuel based, then there will be no emission except for water. So tailpipe emissions, where emissions of something such as gas or radiation into the atmosphere, it has very quiet operation, तो आपकी noise नहीं होती. It is friendly. It can be used in hospital buildings, in the labs, etc. It is easier to scale. Operation times of the fuel cells are much longer than those of the batteries जो आपकी electric vehicles में use हो रही हैं. तो fuel cells only the amount of fuel needs to be doubled and the operation will be doubled. तो आपकी स्केलेबिलिटी ईजी है, आपका एमिशन बहुत ज़ीरो होता है, कोई भी टेल पाइप एमिशन नहीं है, और इसका ऑपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट, सो इट कैन बी यूज्ड अराउंड हॉस्पिटल्स एंड सेंसिटिव बिल्डिंग एरियाज. सो व्हाट आर दी कंसर्न्स? अगर इतना ही अच्छा है ग्रीन हाइड्रोजन, तो हम अभी तक लागू क्यों नहीं कर पा रहे? सो दीज आर द कंसर्न्स. द कॉस्ट इज़ वेरी हाई. Green hydrogen makes up to 0.3% of the global hydrogen production and it is up to 5 times more expensive. यानी केवल जो टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन दुनिया की हो रही है उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन केवल 0.03% है, और एक यूनिट ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जो कॉस्ट आती है दैट इज़ 5 times ऑफ द ग्रे हाइड्रोजन एंड इट इज़ मच हायर देन द ब्राउन हाइड्रोजन. सो मेरा पहली चीज़ कॉस्ट बहुत हाई है. दूसरा स्टोरेज. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑल्सो इज़ द स्टोरेज. आपका जो हाइड्रोजन है उसका स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट है. सो द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ रिक्वायर्ड द स्टोरेज रिक्वायरमेंट compared to fossil fuels for hydrogen is extremely costly. It is very complex and the chances of explosion are very high. Apart from that, the extraction of hydrogen is also very tedious. So despite being the most abundant element in the universe, hydrogen does not exist on its own. So it needs to be extracted from water. How? Through electrolysis. Water में you pass the electricity, you split the molecule of water into the atoms of hydrogen and the oxygen, and that is how you extract the hydrogen. इसके लिए आप क्या use करते हो most extensively? Coal, which is the brown hydrogen type. So these processes require significant amount of energy. So either you do electrolysis or you separate from carbon फॉसिल फ्यूल सच एज मीथेन. आप मीथेन से भी हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करते हैं. दोनों में ही एनर्जी बहुत लगती है एंड दिस एनर्जी कैन बी मोर देन दी व्हाट इज़ गेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन इटसेल्फ. यानी जितनी एनर्जी हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बनाएगा उससे ज़्यादा एनर्जी लग जाती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या कार्बन फॉसिल फ्यूल, स्पेशली मीथेन बेस्ड फॉसिल फ्यूल्स में से हाइड्रोजन बनाने के लिए. तो ओवरऑल ये फ्यूल बहुत ही एक्सपेंसिव है और जो आपका कार्बन कैप्चर और स्टोरेज है वो भी उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है एंड इट अंडरमाइंस द ग्रीन क्रेडेंशियल्स ऑफ द हाइड्रोजन. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन द topic of hydrogen fuel cell. Do tell me the answer for this question in the comment section. So according to me, these were some other random miscellaneous topics which are important for your prelims. There are other topics such as digital signature. What is a digital signature? What is a digital wallet? Which can come in your examination. इसके अलावा आपके कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे देर आर सर्टेन डिजीज़ एंड देयर वैक्सीन्स. हेपेटाइटिस बी, आपकी इंद्रधनुष वैक्सीन्स का क्या आपके डिजीज़ हैं और वैक्सीन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा देर आर सर्टेन स्कीम्स और सर्टेन इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. So apart from this, if you cover these certain few areas, I think you are more than prepared for the science and technology portion for your prelims of 2023. So this was my a very humble and simple attempt to help you prepare for the prelims of 2023. I hope I have tried with all my heart and my hard work to make it as easy for you as I can. I hope it helps in your examination and it helps you crack this paper. So thank you so much. If you have any queries, do reach out to me. My name is Karuna Mishra and I take science and technology for Prep IAS. Thank you so much.